मनसुख जोड़िया से क्यों लॉगिन हुए थे? Hello everyone. Am I audible to everyone? Hi Akansha, Darshan and Gunman. Yes. Okay. Thank you for informing that. Actually, I just tried to switch on my camera, but it's not turning on. Any which ways, is it okay if we go without the camera? Akansha?
If Yes, if your mic are not working, you can anytime use the chat. Okay. So first of all, this is Pranita here. Hi. And as far as my qualifications are concerned, I'm a software engineer. Post that I've done my MBA, and I'm into this field of teaching from last 7 to 8 years. Okay, this was just a brief about me. Wanted to so that at least you people know that whom you're going to work with. For 3 to 4 years, I was working with Bombay Times. Before that, I was working with PT Nasik. Now it is Times Nasik. And from last 3 years, I'm working with Career Launcher Nasik. Okay, so this is my work profile. And I've trained many students as far as CAT is concerned, GRE is concerned, CET is concerned, and all the top-notch exams, whatever you people face when you go for your post-graduation or graduation courses. Okay. Now, I just want a brief about yours, you people, so that I know you better. As of now, today is an online session. I cannot see you face to face. So it's better if I know something about you people. Can we have a sweet and small introduction about you people? Can we start with Darshan? Hello, ma'am. Yeah, Darshan, go ahead. My name is Darshan Chopra. I'm from Pimpalgaon. Okay. It's my first lecture. Yeah, I know that. And what are you doing, Darshan? I'm in first year BCom in BYK college. Darshan, you people own a jewelry shop. You are that Chopra? No. Okay. Because I know one from Pimpalgaon, she is Ruchita Chopra. So they are owner of jewelry shop. So I thought you are from that family. No. Darshan. And you are doing what thing? BCom? First year in BCom. First year BCom. Great, Darshan. And I guess you are trying for CAT 22, if I'm not wrong, right, Darshan? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, Darshan, this is a really good time you've started with, because you know what will happen when you start with the CET का basics, हाँ? जब आप CAT पे जाओगे ना, तो आपका basic फंडा इतना अच्छे से clear हो जाएगा. And then if you start with your CAT preparation, it will be really very helpful to you. So, right time you have chosen to start with this preparation. Great one, Darshan. And yes. So, Darshan, tell me something. Do you like maths? Sorry, ma'am. What? Do you like maths? Yes, somewhat. Somewhat. Okay. Fine. After this session, again, I'll ask this question to every one of you. That do you like maths? And I'm pretty sure, अगर आपको 10% maths पसंद है, तो you will tell कि अभी हमको 40% पसंद आने लग गया है. If you like 90% maths, then वो surely 100 या 110% हो जाएगा. Okay. Thank you so much, Darshan, for your brief introduction. Akansha, can we have your introduction, please? Yeah, myself Akanksha Anil Sake. Just now I have given final year BCom exam. Okay, Akansha, from which college you are doing your BCom? You are doing BYK. BYK. Okay. And you're from Nasik, right, Akansha? Yeah. Sorry? Yeah, I'm from Nasik. Okay. Actually, Akansha, your voice is cracking. That was the reason I was asking you again. And Akansha, you're attempting. Okay. Akansha? I'm attending for CET. Yeah, CET 22. Next year CET, right? Yeah. Okay, great, Akansha. So, Akansha, how many maths you like? I'm not able to hear you. Okay, Akansha, quickly do one thing. Leave the meeting and join back again. I guess there is some network issue at your end. Your voice is also cracking. So kindly leave the session, close the browser, and again open the browser. Okay. I'll wait for you. Yeah. By the time Akansha is joining back, Brunei, can I have your introduction, please? Yes, ma'am. Yeah, go ahead. मैम मेरा नाम मृण्मय है और मैं भी BYK कॉलेज में हूँ. अभी मैं लास्ट ईयर की एग्जाम दी मैंने TY की कॉमर्स.
और मैं सीईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी हूँ और मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है आज इस क्लास में। Yes, ये डेमो सेशन इसीलिए रखा है, यू पीपल आर इंटरेक्टिंग विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए हम लोगों ने ये डेमो सेशन रखा है। वृंदा, आर यू ओके? मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश कंबाइन में बात करूँ? ओके फाइन, बिकॉज कंटिन्यूस शायद ऐसे भी होगा कि कंटिन्यूस इंग्लिश में होगा, बिकॉज वो फ्लो में हमको याद नहीं रहता है। But in case, and this is for everyone, if you people don't understand anything, please stop me there itself. Because क्या होगा ना, जब ऑनलाइन होता है तो हम लोग आपको नहीं देख पाते हैं। When you are sitting in front of us, we can make it from your face कि आपको समझा या नहीं समझा। But यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होता है, when we are not seeing each other, sometimes network issue हो जाता है, या you know कुछ miss हो जाता है because of the network, या might be actual में समझ में नहीं आया। So again, it's a humble request. Stop me there itself and just tell me कि क्या you know क्या नहीं समझा है, or else just ask me. I'll explain it to you again. Okay? Yes, ma'am. Okay. So now, before actually starting with our topic, what we are going to do right now is, first of all, we'll just take a brief about the examination of, you know, as far as your examination is concerned, your CET is concerned. So Darshan, right now today I'll just brief about CET. In the coming session, I'll surely brief you about the CAT pattern. Okay, Darshan? Yes, ma'am. Okay. So as far because Darshan, as it is, आप अगर CAT भी दे रहे हो तो I'm pretty sure कि आप 23 में आप जरूर CET दोगे, because every person who gives CAT वो जरूर कभी ना कभी CET देता है. Okay? Yes, ma'am. So now CET का pattern as of now, if you check, 200 questions होते हैं. Now, out of this 200 questions, there are 3 main sections. The first main section that we have with us is of LR. Next section is maths. Okay. My screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और तीसरा section होता है, that is English. Now, जब हम लोग LR की बात करते हैं, LR में भी 2 और sections होते हैं. जो एक सेक्शन होता है मेन LR या नॉर्मल LR हम बोलते हैं, तो उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा होता है दिस इज लाइक योर कोर LR. ओके, उसके बाद में होता है आपका विजुअल रीजनिंग, एक टॉपिक होता है, उस पे 25 क्वेश्चन, मतलब एक ही टॉपिक पे 25 क्वेश्चन. द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन जो हम बोल सकते हैं सीटी का, वो होता है विजुअल रीजनिंग, बिकॉज अगर आपको मैथ्स आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वर्बल आ रहा है नहीं आ रहा है कोई, बिकॉज इसमें आपको प्रायर नॉलेज किसी की भी जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट आप क्या ऑब्जर्व करते हो, हाउ गुड इज योर ऑब्जर्वेशन, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन स्कोर इन विजुअल रीजनिंग. विजुअल रीजनिंग स्कोरिंग इसलिए भी है कि जो क्वेश्चंस है काफी रिपीटेटिव नेचर के हैं. अगर आप कोई भी मटेरियल रेफर करो, राइट, आपने कम से कम 600-700 क्वेश्चन, और ये हो जाते हैं नॉर्मली सॉल्व, इतना स्पैन है आपके पास में, तो ये हो जाता है नॉर्मली सॉल्व होता है, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि एवरीडे सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ विजुअल रीजनिंग. फ्रॉम द पॉइंट वी डिस्कस दिस विजुअल रीजनिंग, तो उतने स्पैन में अगर आप करते भी हो, नहीं बेयर मिनिमम 200-300 तो हो ही जाएंगे, उतना भी करते हो मोर देन सफिशिएंट. 25 क्वेश्चन में से जरूर आपको 23 to 24 क्वेश्चंस करेक्ट मिलने ही मिलने हैं. अगर आपने बेयर मिनिमम कितना प्रैक्टिस किया है, कैन एनीवन टेल मी, मैंने कितने क्वेश्चंस बोले थे अभी? बेयर मिनिमम 400 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो ये 25 मार्क्स आपके पॉकेट में. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now what is this visual reasoning का questions कुछ ऐसे आते हैं. Now let's say अगर मैंने you know ऐसे कुछ ड्रॉ किया, ये एरो है, ओके, उसके बाद में मैंने ये एरो ड्रॉ किया जो ईस्ट के तरफ जा रहा है, then I'm drawing an arrow which is moving towards south, and my question is which will be my next arrow? What will be your answer? लेफ्ट साइड में जाएगा. Can I say this one? So basically अभी इतना easy question नहीं आएगा, but still मैं आपको एक you know एक understanding होना चाहिए कि what is this topic all about. So it is all about diagrams, pictures, you know you have to complete the series या odd man out, मतलब ये ऐसे ही pictures रहेंगे, ये pictures को देख के या तो आपको odd man out करना है या तो complete करना है series जो हमने अभी किया, या तो फिर analogy. Analogy मतलब क्या? Let's say अगर मैं बोलती हूँ कि if this is to this, okay, ये आपका first figure है, ये आपका second figure है, then this is to what?
क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पैटर्न है यहाँ पे क्या वो 1 और 2 में क्या वेरिएशन, क्या चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों को? अपोजिट डायरेक्शन। कैन आई से मिरर इमेज बन रहा है? अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो क्या होता है? लेट्स से आप ऐसे हो, आप मिरर के सामने खड़े हो तो क्या हो जाता है, ये वाला हाथ इधर साइड में दिखता है, ये वाला पैर इधर दिखता है, यस और नो? ऐसा कुछ दिखेगा पिक्चर? Yes. Yes. तो यहाँ पे मिरर इमेज हो गया। तो इसका मिरर इमेज अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा शेप बनेगा? जस्ट इमेजिन एक नॉर्मल ई हमारा जो हम लिखते हैं, यस और नो? Yes. समझ में आया? सो ये टाइप के क्वेश्चंस विजुअल रीजनिंग में आते हैं। आज हम ये टॉपिक नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट दिस टॉपिक टुडे, बट दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू द ग्लिम्स की व्हाट ऑल टॉपिक्स यू विल गेट। ओके पीपल, एनी डाउट्स विद दिस टॉपिक? आई मीन कुछ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आया है? No. Can I proceed? Okay. Now when we come to core LR में क्या क्या होता है? काफी सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें। So पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे with blood relations. Okay. Blood relations होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो है डायरेक्शंस। उसके बाद में आता है थर्ड टॉपिक अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स हम लोग काफी प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। ओके, इसके बाद में अरेंजमेंट्स में काफी टाइप के अरेंजमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। पहले मैं सिर्फ टॉपिक लिख देती हूँ आप लोग को। अरेंजमेंट्स के बाद में आपको इस पे हम लोग काफी क्वेश्चंस और काफी वैरायटी है इसमें। इसमें कम से कम 5 से 6 वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है। ओके, उसके बाद में एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज सिलोजिज्म्स। ओके, उसके बाद सिलॉग्स नॉर्मली हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट सीरीज। ओके, उसके बाद में टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज लाइक इनपुट आउटपुट एनालिसिस। देन वी हैव अ टॉपिक समथिंग लाइक व्हिच इज कॉल्ड एज सिलेक्शन क्राइटेरिया। ओके, then we have a topic named as set theory. Okay, and इसमें एक और टॉपिक जो नॉर्मली आता है दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल इनइक्वालिटी। एंड 10th टॉपिक है दैट इज मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस इन द सेंस कोई भी नॉर्मल आप जो आपको व्हाट्सएप पे पजल्स आप नॉर्मली देखते हो ना, तो वो किसी कैटेगरी में मैं नहीं डाल सकती, इसलिए हमने उसको मिसलेनियस में डाल दिया। नाउ फर्स्ट टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन, इट इज ऑल अबाउट लाइक आपने कभी मम्मी या पापा को या कोई भी आपके रिलेटिव को बोलते हुए सुना होगा, अच्छा ये तो मेरे भाई के वाइफ के भाई का लड़का है, समथिंग लाइक दैट। दे ट्राई टू रिलेट विद समथिंग। सुना है ऐसे सब लोगों ने कभी ना कभी बोलते हुए? यस यस ना। सो ब्लड रिलेशन इज ऑल अबाउट एक पर्टिकुलर आपको पैराग्राफ दिया होगा या स्टेटमेंट दिया होगा, एंड देन उसके ऊपर बेस्ड आपको फैमिली ट्री बनाना है। आपने कभी ना कभी आपके घर का भी फैमिली ट्री बनाया होगा, माइट बी व्हेन यू वर इन स्कूल, या सो यू हैव टू ड्रॉ द फैमिली चार्ट। ओके, बेस्ड ऑन द चार्ट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज अबाउट ब्लड रिलेशन। मैं सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ओके, इसमें बहुत वैरायटीज आती है, विल चेक दोस वैरायटीज when we are actually doing that topic. Is it okay? Is it okay? Yes. यस So, next is direction. Now if I tell you, Akansha, move towards your north 50 meters, then take a left turn, move again 50 meters, Akansha, and then again take a left turn, move 50 meters again take a left turn and move 50 meters again. Now, where are you as compared to the starting point? I'm not asking you the question. It's just कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो आपको पूछेंगे कितना डिस्टेंस आया है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में, या तो क्वेश्चन आएगा आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन का टॉपिक। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट। What is arrangement all about? Arrangement is something like एक डेटा दिया होगा कि इतने लोग हैं, किसी को कोई लाइकिंग्स के बारे में दिया होगा, कोई करियर ऑप्शंस के बारे में दिया होगा, या एनीथिंग। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। यू हैव टू रिलेट
the different entities. Okay, that is called as matrix arrangement. ये आज शायद अच्छे से नहीं समझ में आएगा, but जब लोग टॉपिक करेंगे, the most interesting topic of all these 10 topics, सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आता है direction, and then आता है arrangements. मजा आता है करने में. Okay, तो अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, कंडीशनल अरेंजमेंट्स, काफी वैरायटी है इसमें, that we will check out in the upcoming sessions of LR. Okay, next is syllogs, completely new topic. Is there anyone who knows anything about syllogisms? किसी को पता है? No, ma'am. No. So this is completely new topic. मैं कितना भी बोलूंगी अभी तो you will find कि ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, right? So we'll not talk on this topic. We'll talk when we are actually taking the topic. Very easy topic, based on rules, based on Venn diagram, something like this. ऐसे diagrams तो आपने देखे होंगे कम से कम कभी ना कभी, right? So syllogs is based on Venn diagram. Okay. Next is series. Let's see if I give you one question. ये आंसर करने की कोशिश करो सब लोग. Okay. So let's see if I give you a series of, I write first number as 4. Next number I write, that is, let's say 36. 36 के बीच में, okay, I'll just correct this. 4, 16, 36, 64, 100. What is the next number? Can anyone answer me this question? What it will be? क्या number आएगा ये series में next? 200. Sorry? 200. 200. Okay, ये मृण्मयी का आंसर है. दर्शन, आपका आंसर? Think. Take your time. Take your time. Akansha, you can also answer. Okay. मृण्मयी, आपने 200 बोला. Can you tell me how come 200 आपको मिला? मैम 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 वैसा करना चाहिए था. Yes. अभी समझ में. 8 जा 64 स्क्वायर है. 9. 4 का स्क्वायर. This is 6 का स्क्वायर. This is 8 का स्क्वायर. This is 10 का स्क्वायर. ये 2 4 6 8 10 ये सारे कौन से नंबर्स है? Even number. Even numbers. So next even number कौन सा हमारे लिस्ट? 12. 144. Perfect. Okay. So ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज में. इसमें एक और टॉपिक होता है, that is coding and decoding. So I'm just giving you a brief about the topic. हम लोग ये टॉपिक एक्चुअल क्या है that we will discuss in the upcoming classes. It's just that आपको पता होना चाहिए कि you know what kind of topics you have. And trust me, all the topics are really very interesting. Okay. Next is input output analysis. Basically आपको कुछ steps दिए होंगे. You have to analyze that steps and you have to try to find out कि यहाँ पे क्या logic use किया. Based on that logic, you will be answering the questions. Okay. Selection criteria is something like अभी आप लोग let's say MBA में admission लोगे. Directly admission मिलता है या कुछ criteria आपको satisfy करना पड़ता है normally? वो लोग सीधा आप first come first serve basis पे admission दे देते हैं क्या कोई भी college वाले? नहीं ना. They'll ask you आपका 10th में क्या स्कोर था, आपका 12th में क्या स्कोर था, right? उसके बाद में what is your CT का स्कोर, what is your CAT का स्कोर. After that they'll check your age. आपका एज भी appropriate होना चाहिए वो particular प्रोग्राम के लिए. Then they'll check your work experience. कोई लोग you know थोड़ा graduation करने के बाद में कभी work ex लेते हैं, so they'll check that. So there are different criterias. ऐसे list of criteria आपको दिया होता है. Based on those criteria वो आपको कुछ you know cases देते हैं. And then you have to check कि वो particular person has is he you know complying with all the criterias. If yes, then will he be selected? Will he be rejected? So basically this is the type of the question what you get over here. The most easiest topic I can tell is selection criteria. अगर ये set of questions आपको आ गए, 5 questions आते हैं,
अगर ये आते एग्जाम में, इट्स योर लक, ये 5 क्वेश्चंस 5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, एंड यू शुड ऑलवेज डू दिस फर्स्ट, द मोस्ट स्कोरिंग, एंड इसमें गलती होने की बहुत कम चांसेस है, तो इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा रहता है. ओके, सो वेरी इजी टॉपिक. नेक्स्ट इज सेट थियरी. माइट बी 9th-10th में आपने किया होगा सेट थियरी. सो अगेन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम. देन इज लॉजिकल इनइक्वालिटी, जो आपने कभी भी नहीं देखा है. सो आई टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक राइट नाउ, it will be meaningless. So let's keep this discussion till the time we take this particular topic. Miscellaneous, I already told you, it's like puzzles, different kinds of puzzles what you get normally in this particular category. So this was about LR. Now LR may out of the 75 questions, there are few questions which are based on verbal reasoning also, which is related to which topic? Your English. Okay. Those topics will be taken care by your verbal ma'am. Okay, so which topics I am going to cover? I'm going to cover these questions, like almost around 60 questions ये topic के ऊपर आएंगे आपको. Okay, 10 से 12 questions verbal reasoning पे आएंगे. Now those are not fixed कि इतने ही questions आएंगे. It can vary, every year the number of questions can vary कि verbal reasoning के कितने आएंगे और core reasoning में कितने आएंगे. बट ये फिक्स्ड है. विजुअल रीजनिंग के कितने आने वाले हैं? 25. Anyone, any doubt with any of the you didn't understand what exactly is what topic? LR में कोई डाउट है किसी को? Okay, next is maths. maths में होते हैं 50 questions. यहाँ पे अगर आप देखते हो LR के टोटल questions 100 थे, maths के 50 और 50 question English verbal. Okay, मैथ्स में भी दो चीजें होती है. वन इज योर प्योर मैथ्स, ओके, जिसमें काफी सारी चीजें होती है. विल जस्ट चेक देम वन बाय वन. एंड देयर इज वन मोर सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज DI. DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑल अबाउट ग्राफ्स. ग्राफ्स दिए होंगे, बेस्ड ऑन ग्राफ्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, नाउ ग्राफ्स यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड लाइक 15 to 20 क्वेश्चन. अगेन दिस मे वेरी एज पर द एग्जामिनेशन, वी आर नॉट श्योर, बट जो हमने ट्रेंड देखा है आज तक, तो 15 से 20 क्वेश्चंस DI पे आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली like 30 to 35 क्वेश्चंस प्योर मैथ्स पे आते हैं. मैथ्स इज ऑल अबाउट, आपने 8th स्टैंडर्ड तक जो भी मैथ्स किया होगा, कौन से टॉपिक्स किए मैथ्स के आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड तक? What all topics you have done? Percentages? Yes, ma'am. Yeah, okay. Profit and loss? Yes. Interest मतलब क्या? Compound interest. Compound interest. फिर आता है ratios. Okay, ratios के बाद में, okay, इसके पहले एक और टॉपिक आता, that is called as number system. Okay, number system is all about your 4th, 5th, 6th standard का maths. इसमें काफी सब टॉपिक्स, छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं, so that we will cover in number systems. Okay, जैसे प्लेस वैल्यू है, उसके बाद में आता है आपका HCF, LCM, पावर साइकिल्स, ये सारी चीजें आपने किया है 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स था, बेसिक मैथ्स, that we will cover under number system. Then we have arithmetic section. Arithmetic section में you have percentage, profit and loss, interest, ratio proportions. उसके बाद में mixtures and allegations करके एक टॉपिक होता है, ये शायद आपने नहीं किया होगा स्कूल में. This is something new topic. Okay, after that you have time, speed, distance. I'm pretty sure सबने किया है ये स्कूल में, right? Then we have topic which is called as time and work. Again a new topic. Okay, so these are the topics which we cover under arithmetic section. One is your number systems. उसके बाद में next topic आता है आपका algebra. The algebra till your 9th standard. 10th standard का भी algebra नहीं रहता है इसके अंदर. Okay, so don't worry with the complicated algebra जो आपने 10th standard में किया है. Basic algebra जैसे equation form करो, equation को solve करो, determine the what kind of roots you get, or basically mostly algebra में जो questions आते हैं, those are like form the equation, solve the equation, linear and quadratic. Okay, उसके बाद में inequalities आती है, जो शायद आपने नहीं किया इसके पहले कभी, so that we will be doing when we are proceeding with the CT का thing. Okay, next come geometry. Basics of geometry.
उसके बाद में आई होप सब लोगों ने 2D फिगर्स 3D फिगर्स के एरियाज वॉल्यूम ये सब किया होगा. सो दैट थिंग वी हैव इन ज्योमेट्री. उसके बाद में मॉडर्न मैथ्स में एक ही टॉपिक मोस्टली आता है, दैट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. शायद अगर आपने 11th-12th में मैथ्स लिया होगा तो ये टॉपिक आपने तभी किया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी. इसमें से काफी टॉपिक फेमिलियर है आप लोगों को. एक 2-3 टॉपिक है जो शायद आपके लिए न्यू होंगे. नाउ दो दे आर फेमिलियर टू यू, व्हाट इज आवर फोकस मोर ऑन? आप लोगों ने स्कूल में आपको किसके लिए मार्क्स मिलते थे? स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलते थे? यस और नो? आंसर really incorrect है, बट स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलते थे ना मृण्मयी? Yes, ma'am. Yes. यहाँ पे by hook or by crook you have to find the answer. There is no one to check your steps. All about objective questions, right? So you have to mark the options. So we want the final answer, and you need to solve them as quick as possible, because CET is all about speed and accuracy. If your speed is good, trust me, speed is good with accuracy, with a very good accuracy, at least 90%, 80% accuracy. Nothing like that. You will get a very good score and a very good college. So to increase the speed, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? How can we increase the speed with maths? क्या लगता है आपको? Have you ever heard about something which is called as speed maths? Vedic maths, speed maths, कभी सुना है ये सब? Hello? Yes, ma'am. Right. So we will be focusing more on speed maths. जो आपने questions स्कूल में किए वही questions करेंगे, but स्कूल के मेथड से नहीं करेंगे. We'll try to find out shortcut in each and every topic, mostly each and every questions. Okay? But वो सब करने के लिए the most important thing is how to speed up your calculations, because calculations अगर speed up नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. Okay, so today's topic is completely dedicated with for the speed maths, how to improve your speed while doing the calculations. And one more thing, calculators allowed है CET में? Anyone knows that? नहीं, allowed नहीं है. Allowed नहीं है. तो calculators भी allowed नहीं है, तो speed बढ़ाने के लिए कोई ना कोई techniques तो सीखनी पड़ेगी ना, right? So today we'll learn few techniques how to increase the speed, and trust me, this will be really very helpful and it's very interesting to get the answers. Let's say अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, बेसिक क्वेश्चन है, 99 का स्क्वायर, मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए. I just want to know from 3 of you कि ये स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा. मुझे आंसर नहीं चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बस इतना ही चाहिए मुझे. ये सब आंसर कितना टाइम? ओके दर्शन, कितना टाइम लगेगा आपको? हेलो आकांक्षा, दर्शन, are you there? Yes, ma'am. And one more thing, if possible, can you people keep yourself unmuted? अगर आपके घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, keep it unmuted. अगर बहुत बड़ी बैच है, then I tell you normally to be muted. But अभी आप लोग unmuted भी रहोगे तो कोई issues नहीं है. And I can understand everyone is at home, तो थोड़ा बहुत background noise आएगा. But it will be really very helpful if we have interactive sessions. Okay, so कितना time लगेगा? Again, coming back to my question. I'm waiting for your answers, people. Two to three minutes. 2 to 3 minutes. Okay. What about you, Akansha? 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. And what about you, Mrunmay? Yes, ma'am. 1.5 minute लगेगा ही. लगेगा. और अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर 20 to 30 seconds में आ जाए तो पॉसिबल है? ट्रस्ट मी, इट इज पॉसिबल. करके बताओ. Yes. Yes, ma'am. अभी जब मैं मेथड एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा टाइम लगने वाला है. अगर मैंने 20 सेकेंड में सॉल्व किया तो आप लोग को कुछ भी नहीं समझेगा. ओके, सो अभी जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तब टाइम लगेगा
क्योंकि मुझे चाहिए कि आपको मेथड अच्छे से समझे. Now the first method that we are taking, that is called as what? Base method. Okay, that is called as a base method. 99 के आसपास में ऐसा कौन सा नंबर जिसके साथ आप इजीली प्ले कर सकते हो? 100. 100. तो हम लोगों ने बेस ले लिया 100. ओके. नाउ 99 100 से कितना कम है या ज्यादा है? हाउ मच इज मोर और लेस देन 100? 1 second. So now you said it is 1 less than 100. So what you have to do is subtract 1 from this. Why we subtracted? Because वो 1 से कम है. अगर वो 102 होता तो आपने क्या किया होता? 102 में 2 को ऐड किया होता. Why? Because 102 is more than 100. इस डिफरेंस समझ में आया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का? Yes. ओके. सो 99 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास? 98. राइट. ओके. द नेक्स्ट स्टेप इज आपको ये 98 को जो भी नंबर मिलता है उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज 98 into 100. बेसिकली आप क्या कर रहे हो? 98 के आगे 2 zeros लगा रहे हो. राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? ये जो भी नंबर है यहाँ पे इसका स्क्वायर करके उसको यहाँ पे ऐड करना है 9800 में. So 1 का स्क्वायर इज 1. So क्या मिलता है हमको? 9801. And this is your final answer. आपके पास कैलकुलेटर होगा या मोबाइल का कैलकुलेटर होगा, क्विकली चेक करके बताओ मुझे ये करेक्ट आंसर है या नहीं. Yes, correct है. करेक्ट है. ओके. सो अगेन आई रिपीट, स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले आपको बेस फाइंड करना है. द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? यू हैव टू फाइंड द बेस. सेकेंड स्टेप, हाउ मच मोर और लेस, कितना कम या ज्यादा है वो चेक करना है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है. ओके. थर्ड स्टेप इज वॉट एवर आंसर यू गेट, मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय द बेस. एंड फोर्थ स्टेप इज add the square of the difference between the two number. Add the square of difference between number and base. Step समझ में आई? I'll repeat this again with few more examples, but at least basic समझ में आया कैसे solve करना है. Did Yes. everyone? Okay. Let's take few examples. Let's say अगर मुझे 98 का स्क्वायर करना है. Let's do one by one. Huh? Darshan, will you help me with this one? Let's do it together. Correct? Yes, sir. Okay, Darshan. First, 98 is how much more? with or minus 2. minus 2. Less. Great, Darshan. Yes. So next number मुझे 96. great. 96 into 100. तो मैं directly 0 0 लिखूं Yes. अभी? Okay. Yes. Further, Add 4. 4 is what? Square of 2 2. square. What is your final answer, Darshan? 9604. Darshan, do you? I just saw the timer. You solved this in hardly 20 seconds. Okay, so that's the beauty of speed maths. Akansha, next is you. So next number. Akansha, आप क्या बोल रहे हो? नहीं सुना. Yeah. Yeah, ma'am. Okay, Akansha, your number is 96 का square. Let's do it. Minus Very 4. good. Then 96 minus 4 is? Very 92. good. इसके आगे क्या लगाऊं मैं, आकांक्षा? 00. And what should I add over here, आकांक्षा? +2. नहीं बेटा, आपको ये जो नंबर है ना इसका स्क्वायर ऐड कर. Okay. 16. So what is your final answer? 9. 9216. मृन्मयी, आपके साथ अब काम करते हैं. 102 का स्क्वायर फाइंड करना है मृन्मयी. Yes. Ma'am, -2. अच्छा मृन्मयी, नाउ अभी मैं स्टेटमेंट मेरा अच्छे से सुनो. 102 is how much more or less than 100? More than 100 means +2 करना पड़ेगा. Very good. Understood? Why we are doing plus over here and why minus over here? Okay. So 102 plus 2 will give me what number? Okay. 104. अब क्या करूं नेक्स्ट मिनट में?
104 into 100, so 104 and 00. Okay, अभी क्या करूँ मृण्मय नेक्स्ट? अभी +4. Yes, 2 का स्क्वायर आपने इधर डाल दिया, that is 4. So final answer is 1040. समझ में आया मृण्मय? Yes. ओके, एक और राउंड लेंगे जहां पे मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगी. उसके Okay. बाद में जो नेक्स्ट राउंड करेंगे वहां पे ना मैं लिखने वाली हूँ ना आप लोग लिखने वाले हो. बिकॉज स्पीड मैथ्स इज ऑल अबाउट मेंटल मैथ्स. मेंटल मैथ्स मतलब क्या? माइंड में करना. माइंड में करना. एंड दैट इज पॉसिबल. और वो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आप लोगों से कैसे करवा के लेना है. ओके, सो नेक्स्ट राउंड. बाय द वे सबको ये मेथड समझ में आया तीनों को? एनीवन एनी डाउट? Yes, ma'am. Great. Okay, let's take next number. Darshan, again, let's start with you. 88 का square करना है दर्शन अभी. The base number 100 लेना है कि 90? आप 100 ही लो because आपको ये वाले स्टेप में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है. मल्टीप्लाई में 90 इजी है, 100 इजी है. 100. 100. Right. -12. Perfect. -12 I'll do over here. 76. 76. 7600. Very good. Next. Plus 144. Okay. So final answer. 7744. Darshan, this was really very quick. Okay. Next, Mrinmay. The number is, let's say, 108. मैम अभी 100 ही लेना है ना? प्लस yes +8, Hmm. 116, फिर 8 60 +64. पर यहाँ पे एक स्टेप भूल गए बेटा. हाँ 00 फिर +64. Final answer. 11664. That was again very quick. सिर्फ स्टेप्स को याद रखो. एक भी स्टेप अगर भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके. Yes. नेक्स्ट आकांक्षा. And Akansha, your number is, let's say, 112. +12. 12400 Hmm. +144. Finally. 12544. Okay, 81. So देखा आप लोगों ने, आपने ही ये क्वेश्चन सॉल्व किए. सेकेंड राउंड में तो मैंने हार्डली आपकी मदद की. एंड यू पीपल वर रियली क्विक विद दिस. डिफिकल्ट लगा ये मेथड, बट अगर वही मैं आपको बोलूं अरे 99 into 99 करो, क्या होएगा? टाइम जाएगा. एंड गारंटी भी नहीं है करेक्ट है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सी बार हम लोग 6 तो करने में एक्सपर्ट ही हो गए अभी सब लोग, है ना? यस और नो? यस. Yes. Now, एक राउंड मेंटल मैथ्स वाला ले विदाउट राइटिंग एनीथिंग. कैन वी ट्राई? Yes, ma'am. Let's again start with Darshan. Darshan, your number is 90. Let's say 92. Go ahead, Darshan. 92 minus 8, 86. Okay, 8600. 8664. 8664 final answer. 8. 664. Okay, so 92 minus 8 here, that you got 8600. Yes. और उसमें आपने किसका And स्क्वायर ऐड किया? 8 का square. 8 का स्क्वायर कितना होता है दर्शन? 64. तो ये 8661 आएगा, ये 8664 आएगा. 64 ही बोला था. 64 ही बोला था. My bad दर्शन, मैंने शायद 61 सुना. I'm sorry. Great work दर्शन. दर्शन अभी तो 20 seconds भी नहीं लगे, आपने ऑब्जर्व किया? Yes. Okay, Mrinmay, your turn now. And your number is, let's say, 105 का square. Yes. You can speak like 105 plus 5. ऐसा बोलो. 105 plus 5, 110. 110 and 00. Then add 25. So 105 plus 25. So 105. 11025.
Simple? Yes. Yes, great one. Okay, Akansha, your turn. Yes, ma'am. Let's do the number 98. 98 हो गया है. So let's do the number 89 करते. चलो Akansha. -11, 89 minus 11 कितना? 78, उसके आगे? 00, करेक्ट. तो 7800 तक पहुंचा. उसके आगे? add 121, राइट. कितना आएगा वो? अच्छा, मैं नंबर लिख देती हूँ आपके लिए. इट वाज 7800. इसमें आप 121 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7921. करेक्ट. समझ में आया? यस. एंड ये Yes. आपने सी आज फर्स्ट सेशन है, तो जरूरी नहीं कि आज के आज आपको एकदम परफेक्ट आएगा. बट आई रिक्वेस्ट यू, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप टाइम निकाल के ये प्रैक्टिस करो. बट लेट्स से आप लोग सब ड्राइव करते होंगे, या माइट बी व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ, और माइट बी व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, और माइट बी यू आर सिटिंग आइडल. जिस दिमाग में कोई भी नंबर लाओ एंड ट्राई टू फाइंड इट स्क्वायर. और मोबाइल तो वैसे भी हाथ में रहता ही है. क्रॉस चेक करने को कितना टाइम लगेगा? हार्डली 2-3 सेकेंड्स. बट अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली माइंड में नंबर्स घुमाओगे ना, ट्रस्ट में आपका स्पीड जो रहेगा कैलकुलेशन का, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा विद इन 15 to 20 days. और आप लोग खुद ही मुझे आके बोलोगे कि मैम हमारा स्पीड काफी चेंज हो गया है, एंड हार्डली आपको कहीं पे कुछ लिखना पड़ रहा है कैलकुलेशन के लिए. ओके, आई मेक इट पॉइंट कि एवरी सेशन वी विल लर्न वन और द अदर टेक्निक. टॉपिक रिलेटेड टेक्निक्स है वो तो अलग. कैलकुलेशन टेक्निक्स जो होती है, काफी सारी टेक्निक्स है. सो एवरी सेशन स्टार्टिंग के 5-10 मिनट हम लोग एक टेक्निक पे वर्क करेंगे. सबको समझ में आया बेस वाला? वी आर नॉट स्टिल डन विद दिस बेस मेथड. एनीवन एनी डाउट? Ma'am. No, ma'am. ओके, Ma'am, I have doubt. बोलो मृन्मय. मैम बेस हर टाइम मतलब 100 ही लेना है. अगर मुझे 46 का स्क्वायर चाहिए मैं तो? वहीं पे आ रही हूँ. अभी लेट्स से जैसे आपने नंबर बोला मृन्मय 46, अभी मैं 100 लूंगी तो 54 माइनस करना कुछ अजीब नहीं लग रहा है? राइट. सो 46 के आसपास में कौन सा नंबर है जिसके साथ आप इजीली प्ले कर सकते हो? 50. तो हमने बेस क्या ले लिया मृन्मय? 50. 46 50 से कितना कम या ज्यादा है? -4. -4. सो 46 -4 विल गिव मी 42. बट यहाँ पे अभी मुझे मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 50 से. बट कैन आई राइट 50 is nothing but 100/2? आई एम Yes. वेरी लेजी इन कैलकुलेशन. मैं हर चीज में शॉर्टकट फाइंड करने की कोशिश करती हूँ. दैट्स रियली वेरी बैड हैबिट ऑफ माइंड. बट ट्रस्ट मी, यही बैड हैबिट आपको अगर लग गई ना, तो नथिंग लाइक दैट. ओके, तो 50 से मल्टीप्लाई करने, आई मीन 5 का टेबल करने से अच्छा है लेट्स डू इट. इसका आधा 21 का आधा डिवाइड बाय 2 है, मतलब उसका आधा कितना होएगा? 21. और उसके आगे 2 zeros लगा दिए. ये समझा क्या ये कैसे कैलकुलेशन किया मैंने? आप इसको इंटू 50 भी करोगे तो 0 5 2 10 1 आया सेम नंबर. यस, मतलब उसका हाफ करना है. इसको हाफ करके 2 zeros, क्योंकि 50 क्या होता है? 100/2 ना. यस. समझा? बाकी Yes. एज इट इज. अभी वापस 2100 में हम क्या ऐड करेंगे? 16. राइट. सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 2116. Yes. आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है. Now let's say अगर मैंने आपको नंबर दिया 19 का स्क्वायर, हमको पता है, माइट भी आपको भी पता है 19 का स्क्वायर क्या है. बट यहाँ पे लेट्स से अगर दर्शन बोलते हैं कि मैम मुझे तो 10 के साथ वर्क करना है, एंड मैं अगर बोले 20 के साथ वर्क करना है, तो आप दोनों में से कौन गलत है? दर्शन. कोई भी गलत नहीं है. ट्रस्ट मी, यू कैन वर्क विद एनी बेस. अगर लेट्स से 10, पहले हम लोग 10 के साथ वर्क करते हैं. ओके, 19 10 से कितना कम या ज्यादा है? 9 से ज्यादा. 9 से ज्यादा है. तो व्हाट आई डू इज आई ऐड 9 ओवर हियर. 19 + 9 कितना हो जाएगा? 28. फिर अभी इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरोस लगाओगे यहाँ पे? 1 0. 1 0. और उसमें आपको क्या ऐड करना होगा? 9 का
स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81. 1. तो क्या आंसर आया आपका? 361. यस और नो? Yes. ओके, Yes. अभी फिर से 19 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, बट अभी हम लोग बेस क्या लेंगे? 20. 19 20 से कितना कम या ज्यादा है? -1. ओके, 19 में से 1 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 18. 18 को अभी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? बेस के साथ. 360. 360. और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 1. 1 का स्क्वायर विच इज 1. आया 361. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? सो बेस आप कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि आप बेस कौन सा. अब अगर मैंने 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर करने से सबसे फास्ट क्या होता है? 1 का स्क्वायर करना. समझ Yes. में आ रहा है? सो वो ट्रिक कब समझ में आएगी? जब आपका थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. लाइक नथिंग इज रॉन्ग एंड राइट ओवर हियर. इट्स ऑल अबाउट कि आप कौन सा नंबर कहाँ पे और कैसे यूज कर रहे हो, एंड दैट विल कम विद प्रैक्टिस. Day 1 that is not possible, and this you people also know. जब आप कोई नई चीज सीखते हो, when you learn to drive, पहले दिन ही ड्राइविंग एकदम अच्छे से आ जाती है क्या? पहले दिन फर्स्ट गियर पे ही चलाओगे, सेकेंड डे माइट भी आप गियर चेंज करोगे, माइट भी 10 days के बाद आप टॉप गियर पे गाड़ी डालोगे. yes or no? So this will happen with practice. So give yourself time and give yourself consistency. Trust me, CET is your, it will surely give you a very good score. Now let's say अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे 499 का स्क्वायर निकालना है. Can anyone help me with this number? कैसे निकालूं? -1 500 base लेंगे. Perfect, Darshan. Okay, so -1. What is the next number I'll get, Darshan? 498 498. But Darshan, I don't want to multiply by 500. मैं क्या करूँ? into 1000 divided by 2. Okay, तो 498 का हाफ कितना होएगा, दर्शन? 249. 249. एंड देन आगे कितने जीरोस लगाऊं मैं, दर्शन? यहाँ पे 3. 3 zeros. Perfect, right? Okay. Yes. Just a sec, people. Just a sec. Sorry for the interruption. Okay, people, I'm so sorry for the interruption. Okay, Darshan, let's go ahead. Add 1. Add 1. Just trust me, 499 ka square, hardly in 10 seconds. So is this method helpful to you people? Yes. Yes. Okay, let's say if I want to do 998 ka square, then -2. -2. You get next number as 996. kitne zeros? 3 3 Plus. plus 4. plus 4. So your final answer is? 996004. और ये mentally भी possible है? Can you people do this without pens? मैम प्रैक्टिस किया तो आ जाएगा. आ जाएगा. Difficult नहीं है, right? Okay. Now let's see the next method. Now next method आप लोग ही मुझे बताओगे कि क्या मैं कर रही हूँ. Okay, I'll just write. Just observe. 5 का square 25. 15 का square 225. 25 का square 625. 35 का square 1225. कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? लास्ट में 25 और जो फर्स्ट डिजिट है उसके आगे के डिजिट से मल्टीप्लाई. Now यहाँ पे नंबर से वर्कआउट करना है. ये कैसे आया, राइट? यस और नो? नाउ जब मैंने 15 का स्क्वायर लिखा, ये 5 की वजह से मैंने 25 लिख दिया.
ये 1 से मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा, मतलब इसके पहले का नंबर मिलेगा। आपको करना क्या है, 1 into नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 1 के बाद में क्या होता है 2, राइट? सो 1 2 जा कितना होता है 2, इसलिए आपका नंबर आया 225। लेट्स से अब मुझे चाहिए 25 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर करना है, 5 जैसे ही दिख गया मैंने लास्ट में 25 लिख दिया। अब 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2 3 सा 6, सो आंसर कितना आ गया 625। लेट्स से अब मुझे 35 का स्क्वायर, जैसे ही 5 देखा मैंने तुरंत से लिख दिया 25। 3 का नेक्स्ट नंबर 3 into 4 1225। समझ में आ रहा है लॉजिक? Yes. तो अब निकालते हैं 45 का स्क्वायर। क्या करूं यहाँ पे 2025 ओके, यस दैट्स अ परफेक्ट वन दर्शन। 4 5 जा करोगे आप यहाँ पे एंड यू गेट 25। नेक्स्ट वन 55 का स्क्वायर, 3025। दैट इज 3025, परफेक्ट। 65 का स्क्वायर, 4225. परफेक्ट। ये नंबर्स को तो हार्डली 2 या 3 सेकेंड्स लगते हैं। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द नंबर्स, दे आर एंडिंग विथ 5. 5. What will be 95 का स्क्वायर? 9025 परफेक्ट। सो ये ट्रिक समझ में आया सबको, एंडिंग विथ 5 वाला? Yes. Yes. तो हमने दो मेथड्स लिए, एक था बेस मेथड, दूसरा था एंडिंग विथ 5 वाला मेथड, राइट? लेट्स टेक वन मोर मेथड ना। अब बहुत सी बार ऐसे होएगा, लेट्स से अगर मैंने नंबर दे दिया 76 का स्क्वायर निकालो, बेस मेथड इजी है ये नंबर के लिए? No. अगर बेस मेथड यूज किया तो क्या बेस लोगे? 80. 80. बट वहां पे आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 80 के साथ, 90%. राइट? टाइम जाएगा। एंड हमारा मोटो क्या है, हमको क्या करना है, टाइम को कम करना है। तो जो दूसरा मेथड है वो मेथड के लिए सबसे पहले मुझे आप कोई बता सकते हो व्हाट इज a plus b का होल स्क्वायर? एनीवन इफ रिमेंबर्स? A square plus 2AB A square plus B plus- square Plus 2ab plus B plus square. b square. परफेक्ट। इसको कैसे यूज करना है वो बताती हूँ। लेट्स से 76 का स्क्वायर करना है। 7 is your a, 6 is your b, ओके? सबसे पहले फाइंड करो b स्क्वायर, उसके बाद 2ab और उसके बाद a स्क्वायर। व्हाट विल बी b स्क्वायर ओवर हियर? 46. 46। एंड नॉर्मली जब आप लोग कैलकुलेशंस करते हो तो आप क्या करते हो, जो यूनिट्स प्लेस का नंबर है वो लिख देते हो और बाकी का बचा हुआ नंबर क्या करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो, नहीं करते हो? You carry forward, right? Yes or no? Yes. Carry forward for the next operation. मतलब 2ab जब करोगे वहां पे क्या करना है आपको, ये 3 को इसमें ऐड करना होगा। What will be 2 into a into b over here? 2 into 7 into 6 और 7 into 6 into 2, आपको जैसे भी करना है। कितना आएगा? 84. 84 में अब मेरे को ऐड कितना करना है दर्शन? 3. 3. 87. मतलब 87 और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड कितना है? 8। 8. नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? 14. 7 into 7. a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना? 49. 49 में क्या ऐड करना है? कितना ऐड करना है? 8. 57. 8। तो 49 प्लस 8 कितना हो गया? 57. एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे। ये सब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये सब लिखा। आपको मैं और एक तरीका बताती हूँ कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है मेंटली। लिख दो 76 स्क्वायर, सबसे पहले 6 का स्क्वायर, ऐसे पेन को भी ऐसे ही घुमाओ। आपको मेरा पेन दिख रहा है? हाउ एम आई मूविंग इट? Yes. तो 6 का स्क्वायर 36, कैरी 36. 7 6 are 42. Hello, am I audible? Yes. Okay. So 7 6 are 42. 42 2s are how much? 84. 84. 3 is 87. So 8 carry. Next 7 का square.
7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 कितना आया 57. तो दिस यू कैन डू ओरली, और ये हमने ओरली किया है, हमने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ फाइनल आंसर लिखा है यहाँ पे. और ये मेथड सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है. लेट्स से कभी बेस मेथड भूल भी गए आप, तो भी ये मेथड मिनिमम याद रखो, बिकॉज ये मेथड से सब कुछ सारे नंबर सॉल्व होंगे. ओके, लेट्स प्रैक्टिस मोर विद दिस मेथड. लेट्स से अब मुझे फाइंड करना है 56 का स्क्वायर. हाउ टू सॉल्व 56 का स्क्वायर? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 6 का स्क्वायर, दैट इज 76 कैरी 3. उसके बाद में 5 6 30, 32 60, 60 plus 3 63 कैरी 6. नेक्स्ट 5 स्क्वायर कितना होएगा? 25 प्लस 6 31. आ रहा है आंसर, और क्विकली आ रहा है, राइट? Yes. नाउ लेट्स से अगर मैंने आपको बोल दिया 102 का स्क्वायर निकालो, ये भी सॉल्व होगा ये मेथड से. यहाँ पे 100 जो 10 रहेगा वो रहेगा A, और 2 रहेगा वो रहेगा B. सो सबसे पहले आप करोगे 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर मतलब 4. उसमें नेक्स्ट इज 10 into 2 into 2 which will be 40. सो 0 लिखा, 4 कैरी. 10 का स्क्वायर 100, 100 में ये कैरी ऐड कर दिया 4, सो 104 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. ये मेथड कब तक यूज कर सकते हो? जहां तक आपको स्क्वायर आते हैं. तो लेट्स से अगर आपको 20 तक स्क्वायर आते हैं तो आप 196 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो. बट अगर आपको 19 का ही स्क्वायर नहीं आता तो ये मेथड वर्कआउट करेगा क्या आपके लिए? आपके लिए ये मेथड वर्कआउट होगा क्या? हेलो? नहीं होगा. नहीं होगा. तो जहां तक आपको स्क्वायर आते हैं वहां तक आप ये नंबर को बढ़ा सकते हो. ओके, फॉर 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर. सो अगेन आई विल टेल यू, जैसे आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में भी बोला होगा, मम्मी पापा ने भी कई बार बोला होगा, प्लीज 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 आज का टेक अवे आपको करना क्या है? टेबल स्टिल मिनिमम 20 स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, एटलीस्ट स्टिल 30. ओके, एंड क्यूब्स आपको आने चाहिए मिनिमम एटलीस्ट टिल 10. ये तो बेसिक आपको आना ही चाहिए. ओके, अगर ये आता है तो हर एक स्पीड मैथ्स का टेक्निक आपके लिए वर्कआउट होगा. बट अगर टेबल्स ही नहीं आ रहे, क्या मल्टीप्लाई करोगे? राइट? आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इज दिस नेसेसरी? डू यू थिंक? आई थिंक इट इज नेसेसरी. व्हाट इज योर टेक पीपल? Yes, ma'am. Yes. Try. So try to do it. Okay, not possible in one day, no problem. Take your time. You have, I mean, Darshan, you have बहुत टाइम आपके पास. पर दर्शन, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अभी आराम कर लो 3-4 महीना, उसके बाद में देखेंगे. नो, आपने जल्दी स्टार्ट किया, इट्स अ बेनिफिट फॉर यू. Trust me, the people who score 99.99 percentile in CAT, they do start 1.5 years early. So this is a right time when you have started. But don't ever think कि मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से करेंगे. सेम एज विथ मृन्मयी एंड आकांक्षा. आप लोग को लग रहा होगा कि सीईटी तो इस साल का ही हुआ नहीं अभी तक, सो यू नो हमारे पास भी काफी टाइम है, पता नहीं कब होगा. बट ट्रस्ट मी, आपका स्कोर, सी अगेन आई विल रिपीट, आई डोंट नो ये एग्जाम्पल ऐप्ट है या नहीं है, बट लेट्स से दर्शन, आपको कोई लड़की पसंद हो, आई एम जस्ट यू नो मेकिंग इट अ बिट ह्यूमरस, nothing related to anything. बोलोगे ना तो ये क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? What you normally do, you try to find information about her. Specific, not you, might be your friends या किसी का आपने देखा होगा. होता है या नहीं होता है? Same as with Mridmay, Akansha. You'll try to find out information about that guy. दिन भर दिमाग में वही लड़की या वही लड़का घूमता है, right? एंड वो कब तक घूमता है? या तो आपको जब तक वो मिलती नहीं है या मिलता नहीं है, या तो वो यू नो हाथ से चली गई होती है. So same as with the college. Take your dream college in front of you. वो ड्रीम कॉलेज का यू नो वॉलपेपर बना दो आपके लैपटॉप पे, माइट भी मोबाइल पे, या कोई यू नो एक पिक्चर आपके कबर्ड के अंदर या कहीं तो चिपका दो जहाँ पे आप उसको कंटिन्यूसली देखते हो. What happens, वो सामने जब आपको दिखता है, ओके दिस इज माय टारगेट, ट्रस्ट मी,
10% वर्क वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, बिकॉज योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट वे ओनली, मुझे ये चाहिए. सो लेट्स से दर्शन, व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? No. Yes, have you thought of that? No. तो नॉर्मली कैट No. देने वाला आईआईएम के बारे में ही हाँ सोचे. हाँ, वही एक ही कॉलेज पता है सेम, दो तीन Okay, कॉलेज okay, पता है. don't worry, वो भी धीरे धीरे सब, अभी लूप में आओगे तो सब समझ में आएगा. There are many हम्म. colleges, but बंदा कोई भी आईआईएम को टारगेट करेगा, लगा तो आईआईएम का Yes, पिक्चर. ma'am. यस, क्योंकि Yes. एमबीए कर रहे हो, पैकेज 20 लाख से कम तो होना ही नहीं चाहिए, मिनिमम उसके ऊपर ही मिलना चाहिए. तो उसके लिए तो अच्छे कॉलेज की जरूरत है. एंड एवरीवन टुडे इज ऑल ऑफ देम, बी इट अ गर्ल, बी इट अ बॉय, एवरीवन आर मनी माइंडेड. So if you get college, if you get a very good B school, then only you will be able to earn more. I don't say that कि आप नहीं कर पाओगे अगर वो कॉलेज नहीं मिलता है, बट एक बोलते हैं ना, एक शॉर्टकट है. इजी मनी जो बोलते हैं वो कॉलेज के थ्रू होता है. अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छा प्लेसमेंट होएगा और इजी मनी रहता है वो आपके लिए, rather than आप फील्ड में उतरो, फिर जॉब ढूंढो या बिजनेस स्टार्ट करो, काफी टाइम चला जाता है. सॉरी, मैं थोड़ा टॉपिक से अलग बात कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली आई वांट माय पीपल टू गेट मोटिवेटेड मोर. जितना आप पढ़ते नहीं उतना ज्यादा अगर आप मोटिवेटेड हो ना, तो पढ़ाई ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाता है. ओके, so going back to our method now. So understood this method? Anyone any doubt with any of the squaring techniques that we took, all three techniques? आकांक्षा, तीनों टेक्निक समझ में आए? Yes, ma'am. पक्का? Yes. ओके. आप लोगों को जो ये हमने लिया अभी तक, उसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? स्टार्टिंग से हमने जो जो लिया है वो स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेना है आपको? जो फर्स्ट चलेगा. पेज था उसी को. ओके, मैं एक एक करके पीछे जाती हूँ, आपको जो जो स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आप वो ले सकते हो. ओके Okay, ma'am. ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. जस्ट a sec. Okay, so this was the first slide. If you want, you can take the screenshot. Done? Yes. Okay, next. I'm so sorry, handwriting ये tablet यूज करते हैं ना, उसके वजह से might be अगर कोई word नहीं समझ में आ रहा, ask me, I'll just elaborate that word to you. Next slide, base method वाला. Next slide, continuation of the base method. Next, ending with 5 wala number method. And finally, the last method, that is a plus b the whole square wala method. Any method you want me to take it again? Hello? No. Any method you want me to take it again? No. No? Okay. Can we switch on to the next technique now? Yes, ma'am. Okay. Now next technique थोड़ा और interesting बनाते हैं. अब उसके लिए ना आप लोगों को सबसे पहले आपके सामने कैलकुलेटर लाना है. कैलकुलेशंस के लिए नहीं. क्यों लाना है वो मैं बताती हूँ. है कैलकुलेटर्स तीनों के पास? या might be you can use your mobile calculator. Now, what you people have to do is, don't tell me the number, okay? So I'll just explain you the trick, but before that, what you have to do is, आपको मुझे 10 numbers देने हैं. What should be those numbers? Those should be the perfect cube. Perfect cube number मतलब let's say 13 दिया है. तो आपको कैलकुलेटर पे करना क्या है? 13 into 13 into 13. और इसका फाइनल आंसर जो आता है वो मुझे आपको बताना है. समझ में आ रहा है? What you have to do? आपको मुझे ये नंबर नहीं बताना है, आपको मुझे ये नंबर बताना है. एंड वर्क विथ ऑल 2 डिजिट, मतलब जितने भी नंबर्स आप कर रहे हो, वर्क विथ 2 डिजिट नंबर्स. मैं मेथड जब करेंगे तब समझ में आएगा क्यों मैंने 3 डिजिट नंबर नहीं बोला आपको. ओके, गो अहेड, वेटिंग फॉर योर नंबर्स.
Yes, people, you can tell me. मैं ये 64. साइड बाय साइड लिख रही हूँ. Yes, दर्शन, क्या नंबर दिया आपने? 17. 17. आगे? तीनों सेम है क्या, अलग नहीं है, मतलब सेम ही ना तीनों. हाँ, सेम. क्यूब फाइंड करना है ना हाँ, दर्शन. into 17 सॉरी, into 4913 cube of 17. आप मुझे 17 मत बोलो, ये तो हम फाइंड करेंगे. ओके, आप मुझे फाइनल आंसर बोलो. फाइनल आंसर 4913. 4913. ओके दर्शन. यस, मृण भाई, आपका नंबर 12167. 12167. ओके, आकांक्षा, दर्शन, मृण्मयी, जब तक नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट. 10 नंबर्स चाहिए मुझे. आकांक्षा, आपका नंबर. अच्छा, जिसका नंबर रेडी है वो बोलो. 17576. 17576. एंड आई होप आपको आपके नंबर्स याद है. जिसका क्यूब निकाला था वो आपको आपके दिमाग में रखना है. नेक्स्ट 3375. 3375. नेक्स्ट 8000. 8000. ओके, नेक्स्ट 59319. एक सेकेंड ना. 59319. 319. नेक्स्ट 9261. 9261. नेक्स्ट बड़े नंबर्स दो, सब छोटे छोटे नंबर्स दे रहे हो. 80s 90s के नंबर दो थोड़े. 85184. 85184. 184. ओके, नेक्स्ट 46656. 46656. नेक्स्ट 438976. ओके, स्टॉप. 10 नंबर्स आ गए. नाउ बिफोर वर्किंग विद दिस नंबर्स, बेयर मिनिमम ये मेथड के लिए आपको 1 से 10 के क्यूब पता होना चाहिए. जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब क्या होता है पता किसी को? 64. वेरी गुड. 5 का क्यूब 125. 125. 6 का क्यूब 216. 7 का क्यूब इज 343. 43. 8 का क्यूब इज 512. 512. एंड 9 का क्यूब इज 729. 729. 10 का क्यूब सबको पता है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम लिख देते 1000. Now we have to observe something over here. That series what we have written, इसमें कुछ स्पेशलिटी है. 1 इसका जो क्यूब है वो 1 के साथ एंड हो रहा है. ओके, 4 का क्यूब किसके साथ एंड हो रहा है? 4. 4. 5 का क्यूब 5. 6 का क्यूब 6. 9 का क्यूब 9. और 0 मतलब 10 का क्यूब 0. 0. नाउ इसमें और स्पेशल नंबर्स भी है, वो नंबर्स चेक करते हैं. 2 का क्यूब किससे एंड हो रहा है? 8. और 8 का क्यूब 2. 2 से. So can we say 8 and 2 पेयर बन गई? Yes. मतलब 2 का क्यूब 8 से एंड होएगा और 8 का क्यूब 2 से एंड हो रहा है. ओके, ना सिमिलरली 3 का क्यूब किससे एंड हो रहा है? 7. और 7 का क्यूब 3. और बाकी के सारे नंबर्स का क्या प्रॉब्लम है? आई मीन क्या इशू है? वो नंबर्स उनके साथ ही एंड होते हैं, लाइक 5 5 के साथ, 6 6 के साथ, 9 9 के साथ, 4 4 के साथ. ये समझ में आया? Yes. यस. तो हमको क्या याद रखना है ये मेथड में? अगर नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसका जो आंसर रहेगा वो 8 के साथ एंड होगा. अगर नंबर 3 के साथ एंड हो रहा है तो उसका आंसर किसके साथ एंड होएगा? 7 के साथ, एंड वाइस वर्सा. और बाकी के नंबर्स आए तो उसका आंसर किसके साथ एंड होएगा? सेम नंबर के साथ. राइट? ये समझा सबको? Yes. ओके, अभी जाते हैं मेथड के तरफ. नाउ लेट्स टेक फर्स्ट नंबर. अब करना क्या है मेथड में? ग्रुपिंग करने नंबर्स को. कहां से ग्रुपिंग करना है? राइट साइड से 3 ग्रुप बनाने हैं. एक ग्रुप में 3 डिजिट. अब यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, बट कैन आई राइट दिस 4 इज नथिंग बट 004 और इसको एक ग्रुप बना दिया. पॉसिबल? फर्स्ट स्टेप समझा सबको? Yes. व्हाट डिड आई डू? आई जस्ट डिड द ग्रुपिंग ऑफ 3 नंबर्स इन वन ग्रुप. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ लास्ट ग्रुप? इसका लास्ट डिजिट देखो. व्हाट इज द लास्ट डिजिट? 3. तो आपका आंसर किससे एंड होगा?
7. 7. ये ग्रुप का काम खत्म, इसको भी देखो भी मत। अभी ये वाला नंबर देखो 004। 004 में ये वाली लिस्ट जो हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें 4 से कम और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 4 से कम और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 1. वही समझा. सी दर्शन, नंबर क्या है यहाँ पे? 4, राइट दर्शन? मैंने स्टेटमेंट क्या बोला? ये जो लिस्ट है ना 1, 8, 27, 64, 125, 260, 343, ये लिस्ट दिख Yes, रही है दर्शन आपको? Yes. ये लिस्ट में 4 से कम नंबर कौन सा है? 1. 1। और 1 किसका क्यूब है? 1. 1. वो आंसर यहाँ पे लिख दो, हो गया। दर्शन राइट है, 17 का क्यूब था। Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट नंबर 167 का एक ग्रुप और 12 को एक ग्रुप में डाल देते हैं, बराबर? नंबर 7 से एंड हो रहा है, तो आपका आंसर किससे एंड होएगा? 3. इसको अभी देखो मत 167, अभी से 12 को ऑब्जर्व करो। 12 से छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? 8. 8. और 8 किसका क्यूब है? 2. तो आपका फाइनल आंसर है 23। आया करेक्ट? किसने दिया था? Yes. Yes, ma'am. कितना टाइम लग रहा है हम लोग को क्यूब रूट निकालने के लिए? ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट निकाल रहे हैं, राइट ना? Yes. 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 यस। कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को? 20 seconds. 20 सेकेंड्स भी नहीं है आकांक्षा, चेक इट। 576 number is ending with 6. answer will end with 6. 6. 17 से छोटा नंबर, क्विकली। 8. 8 इसका क्यूब 8। 2. 2 आंसर 26। एंड आई एम डेफिनेटली प्रीटी श्योर कि आपने मुझे अगर करेक्ट नंबर दिया तो मेरा आंसर करेक्ट है। ओके, Yes. Okay. Yes. 3 का ग्रुप बनाया, 5 से एंड हो रहा है, मेरा आंसर किससे एंड करूं? 5. 5. 5। 3 से छोटा नंबर 1. 1. और 1 का क्यूब One. रूट 1। आपका आंसर क्या आएगा? 15. 8000। कोई मेथड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे आंसर? 3. 20। 20. और अगर आपको मेथड से जाना है 0, 0 इज एंडिंग विद 0। 0. और 8 किसका क्यूब है? 2 का, 2. तो 20। समझो? नेक्स्ट Yes. 9 से एंड हो रहा है, तो आपका आंसर किससे एंड होना चाहिए? 9. 9 से। 59 के आसपास में परफेक्ट क्यूब नंबर 27. 27. इसका क्यूब है 27। 3. 3. आंसर 39. इजी। नेक्स्ट Yes. बताओ क्या लिखो? अब मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, 1. आपको आंसर बताओ। 1. 1। ओके, और 1. यहाँ पे 2. 2 2. बराबर 21. ना? Yes. 9 से छोटा नंबर 8 है और 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। नेक्स्ट 4. 4। 44. Plus 4. 44 is the final answer. Yes. Yes. Okay. Next 6. 6. 4. Next 36. 36 and that's the answer. Next 6. 6. 76. 76. हार्डली 2 या 3 सेकंड्स में आप लोगों ने आंसर्स दिए, मैंने नहीं दिए अभी। What do you think? Interesting? Yes, ma'am. तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि मैथ्स अगर 10% पसंद है तो शायद 30% पे आ जाएगा। आया ऐसा कुछ इंटरेस्ट आपको? Yes, Yes. ma'am. Yes. ओके। ये मेथड में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? नो? और एक मेथड लेने की कैपेसिटी बची है। See, I really don't want to, burden you people on the first day itself. I'm asking you people, एक और मेथड लेने की कैपेसिटी है। Shall we do square root now? Yes, ma'am. Okay. Everyone, shall we do square root? Yes. Take the screenshot of the screen. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आपको रेफर करने के लिए। एंड डू वन थिंग, क्लास के बाद में ना आप जहाँ पे भी आपका एक रजिस्टर कोई बनाओ, शॉर्टकट ट्रिक्स वाला रजिस्टर बनाओ, उसमें ना रोज शॉर्टकट टेक्निक लिखते चलो फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में ना वो टेक्निक्स यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, सो वो मेथड्स आप कभी भूलोगे नहीं, अदरवाइज वी आर बाउंड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बाउंड टू फॉरगेट दीस मेथड्स। ओके, take the screenshot, let me know if done.
Done. Okay, let's go on to the next one. Yeah. So next is squares. अभी आपका क्या काम है, आप लोग को मुझे perfect square numbers देने. By the time I'll just write perfect square numbers. Okay. Okay, बोलो आपके numbers. 5929. 5929. Next. 1296. 1296. Next. 3721. 3721. Next. 4356. 4356. Next. 2025. 025. Next. 7744. 7744. Next. 2809. 28. 809. Okay. Next. 2209. 2209. Next. 3025. 3025. पहले ये वाले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में और अगर नहीं समझ में आया मेथड तो विल टेक मोर नंबर्स. ना जैसे आपने क्यूब रूट में 3-3 के ग्रुप बनाए थे, यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने नंबर्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा? 2. 2. देखिए स्क्वायर है ना, सो इसलिए 2. ओके, अगेन ये लास्ट डिजिट का कुछ तो इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग पहले यहाँ से फाइंड आउट करते हैं. क्या लगता है आपको कैसे चल रहा है ये? 1 and 9 end with 1, 2 and Yes. end with 4. दिख रहा है आप लोग को ये? यस. 3 and 7 की जोड़ी है, 4 and 6 की जोड़ी है, और 5 अकेला है बेचारा. ओके, सो 1 and 9 they end with what number? 1. 2 and 8 they end with what number? 4. 3 and 7 they end with 9. 4 and 6 end with 6. ये समझा क्या सबको? Yes. अभी ये नंबर पे आते हैं 5929. हमारा लास्ट नंबर 9 है. दैट मींस हमारा आंसर किसके साथ एंड होएगा? 1. 1. 9 है ना, तो 9 अच्छा, okay. किसके साथ एंड होगा? या तो 3 या 7. 3 or 7. 7 के साथ. वी आर नॉट श्योर किसके साथ होगा. सो हमारा जो भी आंसर है वो या तो 50 मतलब एंडिंग विथ 3 होगा या तो एंडिंग विथ 7 होगा. ओके, इसको ये ऐसा ही रखो. अभी 59 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर 59 से छोटा कौन सा है? 49. 14. का स्क्वायर है 7. 7. मतलब आपका आंसर या तो 73 है या तो 77 है. ये समझा क्या? यहाँ तक क्या किया मैं? ये Yes. समझा? ओके, अभी 73 और 77 ये कैसे फाइंड करें? क्या हम 75 का स्क्वायर ओरली फाइंड कर सकते हैं इजीली? हमने मेथड एंडिंग विद 5 लिया था. Yes. ओके, 75 से एंड हो रहा है तो सॉरी, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 75? 5 square 25. 7 and 5 6 5. ओके, 5 6 to 5. ये 5929 ये 5625 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा. छोटा है, अब बड़ा है. ये वाला नंबर इससे बड़ा. बड़ा है. बड़ा है. मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो 75 से बड़ा आना चाहिए या 75 से छोटा आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए. मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है? 77. किसने दिया था ये नंबर? राइट है. Right. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. 6 से एंड हो रहा है, मतलब आपका आंसर किससे एंड होना चाहिए? 4 and 6. 4 4 और या 6. तो 6. ओके, 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9. 9. मतलब आपका आंसर क्या क्या पॉसिबल है? या तो 34. या तो 36. तो हम लोग क्या करेंगे? 35 का स्क्वायर. व्हाट इज 35? ये हम लोग 35 क्यों ले रहे हैं या 75 ही क्यों लिया हम लोगों ने? कोई और नंबर क्यों नहीं चेक कर रहे हम लोग? तो उसके बीच में तो 34 आएगा, नहीं तो 36 आएगा, तो उसके बीच में बेसिकली इसका स्क्वायर फाइंड करना इजी है दर्शन हमारे लिए. एंडिंग विद Yes. 5. यस, इसके लिए हम लोग ये नंबर कोई भी ले सकते हैं.
जिसका स्क्वायर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके 35 का स्क्वायर क्या आएगा बाय द वे? 1225. 1225. आपका नंबर 1225 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा है. फाइनल आंसर क्या आएगा? 36. इसने नंबर दिया था, करेक्ट है? Yes. ग्रेट। ओके नेक्स्ट 1 के साथ एंड हो रहा है, आपका आंसर किसके साथ एंड होएगा? 1 and 9. 1 and 9, ग्रेट। सो हम लोग अभी 37 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36. 6 का. मतलब 61 आंसर है या तो 69 9. बराबर ना? Yes. ओके क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए, 61 या 69? कंफ्यूजन है तो हम लोग 65 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। व्हाट इज 65 का स्क्वायर? 225. 4225. आपका नंबर 4225 से बड़ा है या छोटा है? छोटा. मतलब 61. दैट्स करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? मृन्मयी आपको समझ में आ रहा है? मृन्मयी आप म्यूटेड हो इसलिए। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन एंडिंग विद 6। 4 या 6. 4 या 6। ओके 43 का क्या करूं? 6. मतलब आपका फाइनल आंसर या तो 64 या तो 4 है 66. आप फाइंड करोगे 65 प्लस 65. कितना? 4225. करेक्ट। 65. फाइनल आंसर 66. परफेक्ट। इजी। सी Yes. आपको समझ में आता है तब थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार मेथड समझ में आने के बाद में मैक्स टू मैक्स 10 seconds टू सॉल्व इट, नॉट मोर देन दैट। ओके नेक्स्ट 25 एंड में 5 है। 5 के साथ कुछ नहीं है, 5 से एंड हो रहा है तो आपका आंसर भी 5 के साथ में ही एंड होगा। और 20 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 मतलब फाइनल आंसर आपका 45। Yes. Next is 44 ending with 4. Your answer 2 will or end, 8. your answer will end with 2 or 8. 2 or 8. Great. उसके बाद में 77 के आसपास में 64. 60. मतलब आपका आंसर क्या रहेगा? 28 या 88. नहीं 82 and 88. ओके फिर हम लोग क्या करेंगे 85 का स्क्वायर। व्हाट इज 85 का स्क्वायर? 7225. बस 8 9s are 72 and then 25। आपका नंबर 7225 से बड़ा या छोटा? छोटा. थोड़ा 7 से बड़ा. Sorry. राइट। सो आपका आंसर 88. 88. समझ में आ रहा है सबको ये? Yes. ओके ग्रेट। अभी यहाँ पे नंबर आप देख रहे हो क्या है? 28809 नंबर 5 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट ग्रुप को 2 नंबर्स देंगे और फर्स्ट ग्रुप में 3 नंबर्स रखेंगे। ये समझ में आया सबको मैंने क्या किया? Yes. ओके ये नंबर किसने दिया था? इट्स द आंसर इज 3 नंबर। मैंने दिया था पर वो 2809 था. अच्छा ऐसा है क्या? ओके चलो 9 से एंड हो रहा है तो आपका आंसर विल एंड विद 3 and 7. 3 and 7। 28 के आसपास में 25. 5 square. मतलब 53 या तो 57. 7। फिर हम लोग करेंगे 55 का स्क्वायर। कितना है 55? 3025. 3025। फाइनल आंसर 53. 53 because 2809 is smaller than 3025, Yes. right? 30. Okay next 3 या 7. 3 years। ग्रेट। आपका फाइनल आंसर आई मीन सॉरी दो नंबर 43 47. 43 एंड 47। तो फिर आप क्या करोगे बीच में 45 का स्क्वायर क्या आएगा? 2025. 2025। फाइनल आंसर 47. because 2209 is greater than 2025। Got it? Yes. Okay next 3025 5. ending with 5 तो डायरेक्टली 5। 30 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर तो 30 से कम है। 5. 5. 5 6 कितना 30, राइट? मैच हो रहा है आपके आंसर्स?
Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Again, I'm asking you, ये मेथड में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. पक्का? Everyone? Yes, ma'am. No doubt. Okay. Take the Yes, ma'am. screenshot of this. Let me know once done. Okay. Done. Okay. Now I want to ask you people. See, बहुत सारे methods एक साथ में करोगे तो you will have the tendency might forget, you will forget or overburden. I really don't want to do that. I really want to go like very slow. By the way, मेरा speed proper है. You want me to decrease the speed more या कर सकते हैं? Just a quick feedback. Is the speed normal? Yes. थोड़ा और कम करें? No, ma'am. See, आप मुझे जो the reason मैं ये क्यों पूछ रही हूँ because ये ऑनलाइन है. ऑफलाइन रहता था तो मैं नहीं पूछती थी, आपके फेसेस भी मुझे सब बता देते, आंसर दे देते. ओके या तो स्पीड नॉर्मल लगा सबको? हाँ मैम. हैंडराइटिंग थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. आई एम सो सॉरी. एक्चुअली ये टैबलेट पे लिखता है ना तो नॉर्मल पेन या चौक जैसा नहीं लिख पाते हम लोग, तो उसके वजह से तो बट एटलीस्ट समझ में आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ स्क्रीन के ऊपर. Yes, ma'am. Yes. Okay. And about the delivery, the language that I use, like kabhi Hindi, kabhi, you want me to use any other language like Marathi or something? No ma'am. No, ma'am. Okay. Did you understand the topic, whatever I took? Yes. Yes. Okay. Did you like the session? That's the most important question for me. Yes. Yes, ma'am. Okay, great to know that. And I'll be taking care of your maths, your visual reasoning, and your LR. Okay. So basically, when you enroll with Career Launcher, I'll be taking care of how many marks? 50 marks maths, 75 marks pure LR. Sorry, 75 नहीं बोल सकते, उसमें से थोड़ा portion आपके verbal के मैम लेंगे. So let's say 60 questions वहाँ के and 25 questions आपके visual reasoning के, right? So normally 135 questions, जो 200 marks में से 135 questions का जो responsibility है वो मेरे तरफ रहेगा. Rest questions आपके verbal की मैम लेंगे. Okay? Okay. Apart from this, आपके कोई doubts कोई एग्जाम को लेके या कुछ भी आपके दिमाग में ऐसी, because before enrolling में बहुत सारे questions होते हैं दिमाग में. So I would like to address all your doubts and queries. Anything you have in mind, just ask me. मैम Hmm? हमने सुबह भी पूछा था क्लास में कि अभी मार्च में हमारी एग्जाम रहेगी ना, तो वो यूट्यूब पे वगैरह दिखा रहे कि जून में रहेगी हमारी सीटी, तो वो मतलब कब है, मार्च में है या जून में होगी? अभी मैं आपको सही बताऊं, जो इस साल का सीटी, नॉर्मली सीटी मार्च में होता था, बट तब गड़बड़ क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ कोविड. आपके कॉलेज के भी एग्जाम्स पोस्टपोन हुए. व्हाई? बिकॉज ऑफ कोविड. सो नो वन कैन प्रेडिक्ट कि लेट्स से सब कुछ नॉर्मल रहा तो आपका मार्च में एग्जाम होगा, बट लेट्स से बीच में फिर से लॉकडाउन आ गया या कुछ भी आ गया. अभी ये जो 2021 का सीटी है, अभी चल रहा अगस्त, अभी तक हुआ नहीं है सीटी. समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? सो मैं आपको प्रेडिक्ट करूं मार्च में और लॉकडाउन आ गया तो क्या करेंगे? ओके. राइट, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि मार्च में होने वाला, बिकॉज नॉर्मली जो एमबीए का सीटी होता है वो मार्च में होता है. ओके. अगर सब कुछ नॉर्मल चला और मार्च में एग्जाम हो गया और अगर आपने सोचा चलो दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा अमृत? आपको टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास. राइट, सो दिस इज द बेस्ट टाइम. सी क्या हो रहा है, आप सिर्फ 3 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो, बट वो 3 महीने में आपका बेस रेडी हो जाएगा. सो बाय द टाइम मार्च आता है, आप यू विल बी रेडी विद ऑल योर मॉक्स एंड एवरीथिंग, योर स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग यू विल बी रेडी इन दोस 3 मंथ्स. उसके बाद एग्जाम कभी भी आए क्या फर्क पड़ता है? आपको नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस करना है और एग्जाम देना है जाके. एंड ट्रस्ट मी, ज्यादा जितना सीटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप कितना भी आप सोच लो ना कि अच्छा मैं तो इतना, मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, मेरा एलआर अच्छा है, ट्रस्ट मी, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया ना, he went down with the score, he or she went down with the score.
तो क्यों मैं फोकस करने बोल रही हूँ स्पीड पे या एक्यूरेसी पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे आपने कितने, 200 ज्यादा है, पता है आपको, 150 मिनट्स में। 150 मिनट्स। तो ये लॉजिक लगाओ, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता आपको, राइट? राइट, यस। बट नॉर्मली हम लोग कोई भी 200 क्वेश्चंस कोई टॉपर भी सॉल्व नहीं करता है। सो नॉर्मल टू नॉर्मल कितना सॉल्व होता है, लाइक अराउंड 120 130 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स। ये नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन जो बोलते हैं ना, जो आपके सारे एज के बच्चे, वो इतना ही सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो डोंट वरी, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देना। ओके ओके। सो ये कब बढ़ेगा आपका स्पीड, कब बढ़ेगा आपका एक्यूरेसी, कब बढ़ेगा? प्रैक्टिस किया तो। प्रैक्टिस किया तो ही, मतलब आपने टॉपिक कितना भी अच्छा किया और उसका कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया तो क्या होएगा? नहीं टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करना So this पड़ेगा। is the right time. Even Darshan, I tell you Darshan, मुझे जब CAT देना था, I started almost 2 years, I did my engineering. So और एग्जाम हम लोग कब देते? लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में, या आप दोगे लास्ट ईयर बीकॉम में। तो आपने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर से, मैंने स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग, क्योंकि वो 4 साल का कोर्स था, राइट? उतना टाइम आपको देना चाहिए कोई भी प्रिपरेशन के लिए। बाय बिकॉज बीच बीच में आपके कॉलेज के भी एग्जाम्स काफी आते हैं, आपके सबमिशंस आते हैं, ओके? तो काफी चीजें इंटरप्शन आते हैं, एक एक महीना पूरा इंटरप्ट हो जाता है आपका प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ योर कॉलेज एग्जाम्स, बिकॉज ऑफ योर सबमिशन। अभी नॉर्मल है हम लोग के घर में, वी आर इन फैमिली, कभी फैमिली फंक्शन होता है, कभी यू आर नॉट वेल, तो वो इंटरप्शंस आने ही वाले आपके पूरे 1-1.5 साल में। सो उसको अवॉइड करने के लिए जस्ट ट्राई अर्ली, स्टार्ट अर्ली, सो दैट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। Okay, anything apart from this now? I hope learn में मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है। Yes, yes ma'am. Apart from that, any other questions? No ma'am. No? आकांक्षा, आपके कोई questions? नहीं मैम। पक्का? And any Yes. point in time आपको कभी भी लगता है, just give my number, you can anytime ping me, but सिर्फ call direct मत करो। अगर मैं session में तो I won't be able to receive the call, and 8 o'clock के बाद please आप call मत करना। My number is 9595 94 55554. My name is Pranita Rakecha. Okay? Okay. Yeah, just note down the number if you want, and I'm always there. WhatsApp pe I'll be available. Just call. If I'm in session, I won't be able to pick up your call. I'm not after 8 o'clock. Okay? Okay. Anything apart from this, Darshan? Your doubts? ये पूछना था, मतलब ये CET है, CAT है, और ऐसे कौन से टाइप के एग्जाम है? बहुत सारे एग्जाम्स है। सी आप अभी अगर आप कैट देते हो तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आपको पुणे जाने में इंटरेस्ट है दर्शन, बिकॉज नॉर्मली नासिक के बच्चे जाते हैं पुणे, सिर्फ का स्नैप एग्जाम होता है जो नॉर्मली दिसंबर में आता है। ओके, सिर्फ सीईटी प्रोलॉन्ग हुआ है दर्शन, बाकी सारे एग्जाम ऑन टाइम होते हैं। वो कभी भी कोविड आया नहीं आया, कैट नवंबर मतलब नवंबर में ही होता है। ओके, उसके बाद आता है स्नैप, उसके बाद में लेट्स से आपको नरसिंह मोहन में लेना है, NM बॉम्बे, और नरसिंह मोहन के बैंगलोर में भी एक कैंपस है, उसके बाद में एक धुले के पास भी एक कैंपस है। सो अगर नरसिंह मोहन में जाना है तो एनमैट देना पड़ेगा आपको। अगर जेवियर्स में जाना है, और जेवियर्स मतलब जो जैट एग्जाम होती है उसके स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस देखते हैं, तो जैट नॉर्मली आपका जनवरी फर्स्ट वीक में होता है। उसके बाद में होता है सीमैट, जो ऑल इंडिया लेवल के कॉलेजेस है, जहाँ पे आप कैट के लिए अप्लाई करते हो ना, लेट्स से कैट का स्कोर कम आया तो सीमैट दो, सीमैट के थ्रू आप सेम कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर IIMs। ओके दर्शन, और एक सीईटी तो है। ये बेयर मिनिमम एग्जाम्स हम लोग देने बोलते हैं, ऐसे तो इतनी एग्जाम्स है, बट हर एग्जाम के साथ कुछ कॉस्ट आता है और इतना हम लोग नहीं बेयर कर सकते, कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं बेयर करेगा इतना कॉस्ट, और करना भी नहीं चाहिए, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी। So these are some exams. Keep in mind which places you can go to. Let's say पूना जाना ही नहीं है तो फिर स्नैप देने का कोई फायदा नहीं है। NM नहीं जाना है because NM का फीस is really very very high. अगर NM नहीं जाना है, mostly people think that इतना फीस मुझे नहीं पे करना है, so you don't give NMAT. So it will be all upon you. So whenever you loop में जब आप आ जाओगे ना, so we'll sit together, we'll discuss कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए कौन सा नहीं।
it's all about your interest, and it's all about, you know, how much you want to spend, or what is your specific city you want to go in for, which specific colleges you want to go in for. Are you looking for a business? Are you looking for a job? So it बहुत सारे criteria आ जाते हैं दर्शन इसके अंदर. Okay? Yeah. Okay. Apart from this, any other question? No. No? Okay. मैं फर्स्ट डे है, नॉर्मली हमारा सेशन 2 घंटा होता है, बट फर्स्ट डे मेरे को ज्यादा बॉदर नहीं करना आप लोगों को, इसलिए विल बी एंडिंग द सेशन अर्ली. इज इट ओके विद एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so hope to see you soon, every one of you. It was nice interacting with you know, super active kids like you. So let's meet soon. Okay, see you in the next session. Yes, ma'am. I hope every one of you enroll so that we can meet early. Okay. Yes. Yes. Bye bye everyone. Take care and stay safe. Thank you. Bye.